नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज के दिन की शुरुआत करते हैं सवाल के साथ। इंडिया इज प्लानिंग टू एक्वायर हिरॉन सर्विलेंस ड्रोन्स एंड स्पाई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज एंगेज्ड विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, के भाई पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना आमने सामने खड़े हैं। सो इंडिया इज प्लानिंग टू एनहांस इट्स सर्विलेंस कैपेबिलिटीज एंड फायर पावर by placing orders for Hiron surveillance drones and Spike anti-tank guided missiles। और ये हम कहां से खरीदने वाले हैं? They belong to which of the following country? So the answer is Israel. So we are buying this from Israel. Already we have Hiron unmanned aerial vehicles that are in Air Force, Navy and Army and are being used by the petrol parties. Okay, chalo. Next question for the day. With respect to the draft ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020, तो आप सभी को पता है कि पिछले साल हमने ट्रांसजेंडर्स को उनके अधिकार दिए एंड नाउ वी हैव कम अप विद द रूल्स 2020। दोज आर पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री। सो पॉइंट्स को आप एक बार रीड करें। अकॉर्डिंग टू द रूल, all educational institutions all educational institutions are टू हैव अ कमिटी, कि भाई जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है सबको एक कमिटी बनानी होगी विच ट्रांसजेंडर पर्सन कैन अप्रोच, जिसको कि ट्रांसजेंडर पर्सन अप्रोच कर सकता है इन केस ऑफ एनी हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है कि इस रूल्स में एक प्रोविजन है कि आप जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे एक कमिटी होगी एंड दैट कमिटी विल लिसन टू द any cases of harassment or discrimination with transgender person. Secondly, a district magistrate would issue a transgender identity certificate based on the an affidavit by the applicant. Earlier, bachcho, if you know, earlier it was said in the rule that this will be done by the district magistrate based on the medical report, but now it has been changed because there was a protest from the trans right movement and there was an order from Supreme Court in 2014 that it goes against the trans person's right of self identification। so इसीलिए उसको अब चेंज करके क्या किया है कि आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तो इशू करना है बट बेस्ड ऑन द एफिडेविट बाय द applicant only without any medical examination। which of the following given above are correct? so both are correct. Answer is both 1 and 2. Third question for the day is regarding Project Cheetah. It is associated with which of the following? So now, because India is planning to enhance its surveillance capabilities, in the first question, we have placed order for Hiron surveillance drones and Spike anti-tank guided missiles from Israel under the emergency financial powers granted by the government to the Air Force. Okay, so now it is associated with Indian Air Force. Project Cheetah is associated with Indian Air Force. The forces are also working towards inducting an armed version of UAV. Armed version of UAV को हम ले रहे हैं and that will be upgrading the existing fleet into combat UAVs and the ambitious project Cheetah, superheaded by या फिर spearheaded by the Indian Air Force. The answer is Indian Air Force. अगला सवाल regarding the National Institute of Disaster Management. Consider the following statement with respect to the National Institute of Disaster Management. First point, the institute constituted under an act of parliament and works under the Ministry of Home Affairs. Is that true? Yes, it is true. पार्लियामेंट एक्ट, कौन सा पार्लियामेंट एक्ट था भाई? 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, by the act of parliament it was made and it works under the Ministry of Home Affairs. Also
Second point, it has been entrusted with the responsibility for planning and promoting training and research in the areas of disaster management. That is also true. So which all are true? Both are correct. Both are correct only. Okay, the question number 5. The government of India has recently released the Pragya guidelines. क्या है बच्चों ये? It is associated with which of the following? किससे रिलेटेड है? प्रज्ञता. So it is related to digital education. Digital education, and there is 8-point program in this. 8-point guidelines are there. That is plan, review, planning करो, उसको review करो, then you arrange that. Plan, review, arrange, guide, talk, assign, track and appreciate. Track and appreciate. So these 8-point program is there with us. That is on the basis of Pragyata guidelines given for digital education. Next question is regarding the naming of Indian railway station. So recently क्या हुआ था कि देहरादून का नाम चेंज करके वहां पे लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था पहले देहरादून का नाम, अब वो हटा के संस्कृत में लिख दिया गया है वहां पे. So because of that only it came into news और उसके बारे में पूछा गया. First point is Indian Railways on the railway station and it names the railway station signboards on its discretion. Second point is the station names shall be exhibited in the following order of regional language, Hindi and English. कैसे लिखे जाएंगे भाई? Regional language, Hindi and English. Uniformly across all the stations. इसको ध्यान से पढ़ें. Uniformly across all the railway stations in India. Which of the following are correct? बच्चों इनमें से कोई भी बातें ठीक नहीं है, दोनों पॉइंट गलत है. क्यों? इंडियन रेलवेज कैन ऑन द रेलवे स्टेशन, ये बात तो करेक्ट है, आधी बात सत्य है, लेकिन इट नेम्स द रेलवे स्टेशन साइन बोर्ड्स ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन. नो, एंटायरली रॉन्ग. इट इज नॉट ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन. ये लेटर लिखते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और उसकी कंसिडरेशन के बाद ही नेम चेंज करते हैं. एंड फॉर दैट ऑल्सो दे राइट अ लेटर टू होम मिनिस्ट्री. ठीक है, तो स्टेट और होम मिनिस्ट्री दोनों मिलकर इसका काम को करते हैं. देन सेकंड पॉइंट, द स्टेशन नेम शैल बी एग्जिबिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. रीजनल लैंग्वेज करेक्ट, पहले रीजनल लैंग्वेज लिखते हैं, फिर हिंदी में लिखते हैं और फिर इंग्लिश में लिखते हैं. ये बात तो ठीक है, लेकिन इज दैट यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द रेलवे स्टेशन इन इंडिया? नो. वेयर वी डोंट डू दिस? इन तमिलनाडु वी डोंट राइट इट इन हिंदी. तमिलनाडु में किसी किसी जगह को छोड़कर हम हिंदी में नहीं लिखते हैं. सो द आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020. एक अध्यादेश जारी किया है गवर्नमेंट ने फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ताकि वो फ्रीली अपना काम कर सके. तो क्या डेफिनेशन देता है ये? फर्स्ट पॉइंट इज a farmer is defined as a person engaged in production of farmers produce by self or by hired labor. by या तो खुद करे या फिर hired labor से वो कराए, तो उसको हम कहेंगे farmer. As per the ordinance, no license from the state government are required and any PAN card holder can do the trade. Third point, the ordinance allows state government to levy market fee on the traders. Which of the following statements given above are correct? बच्चों the answer is 1 and 2 only. क्या कि जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है फार्मर की, कि फार्मर वो होता है जो या तो खुद या फिर हायर्ड लेबर से फार्मर प्रोड्यूस को पैदा करे. दैट इज ट्रू. देन सेकंड इज कि ऑर्डिनेंस के हिसाब से इसमें स्टेट गवर्नमेंट से किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है. ये बात सही है
किसी भी पैन कार्ड होल्डर को ट्रेड करने की अनुमति दी गई है, दैट इज ट्रू। देन थर्ड पॉइंट इज द ऑर्डिनेंस अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट, इट डज नॉट अलाउ, एक्चुअली इट प्रोहिबिट्स। ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करता, ये उनको रोकता है फ्रॉम लिवाइंग एनी मार्केट फीस ऑन ट्रेडर्स, कि भाई कोई भी आप फीस नहीं लगाओगे। तो द आंसर बिकम्स 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू येती टेरिटरी। तो बच्चों अभी तक तो हमारी लड़ाई कहां कहां हो रही थी? लद्दाख में, कश्मीर और इंडिया और चाइना के बीच में, तो कश्मीर एरिया में हो रही थी। फिर नेपाल थोड़ी बहुत कुछ कुछ बातें बोल रहा था, ठीक है। अब एक येती टेरिटरी, इट इज सीन इन द रिसेंटली न्यूज। क्यों? फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द नेपाल्स टेरिटरी लोकेटेड इन इंडिया नेपाल बॉर्डर। सेकंड, द रीजन लाइज इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which of the following statements given above is and are correct? So the option is ABCD. The answer is 2 only. That is, second point is correct. First is wrong. Why? Because this is not the Nepal's territory. This is not the Nepal's territory. Actually, this is the Bhutan's territory. ठीक है, ये भूटान की टेरिटरी है। अगर आप देखोगे तो भूटान कुछ ऐसा सा दिखता है अपने मैप पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट होता है। ये है चाइना, और ये इधर वाला हिस्सा भूटान का, और ये इंडिया का। ये जो येती टेरिटरी है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है येती टेरिटरी? दिस इज द येती टेरिटरी, ओके, दिस पोर्शन। एंड इन दिस टेरिटरी व्हाट वी आर ट्राइंग, इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ रोड थ्रू दिस, so that it is easier to reach अरुणाचल प्रदेश। और वहां पे एक रीजन है त्वांग नाम का, तो त्वांग नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पहुंचने में हमको इजी होगा, इसलिए इंडिया इज क्रिएटिंग ए रोड। अब चाइना की डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन चाइना क्या कह रहा है कि नहीं भाई ये हमारी टेरिटरी का ही पार्ट है, और दिस सेंचुरी दैट इज साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारी ही है, और इसके आसपास का हिस्सा भी हमारा ही है, भले ही उसकी बाउंड्रीज नहीं लगती। अब देखो वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी तो हमारा ही है। तो जब ये हिस्सा हमारा है और इससे लगता जुलता ये एरिया, ये पूरा एरिया ही हमारा है, ये चाइना का क्लेम है। एंड दस टेरिटरी इज येती टेरिटरी बिलोंग्स टू भूटान, एंड वी आर क्रिएटिंग अ रोड, और उसी के ऊपर सारा पंगा स्टार्ट किया है चाइना ने। तो चाइना को डर अभी किस चीज का है? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग रोड्स, और जहां जहां हम रोड बना रहे हैं वहां वहां अपने ट्रूप्स को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और यही उसके नाक में दम कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पारादीप पोर्ट। Paradip port was recently in news, and it belongs to which of the following states? Gujarat, West Bengal, Goa or Odisha? It is from Odisha. It is from Odisha. Okay, so that is the correct answer. Last question for the day is, consider the following statement with respect to NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, कि भाई गांव ग्रामीण एरिया की खेतीबाड़ी और उनकी डेवलपमेंट के लिए एक जो राष्ट्रीय बैंक है नबार्ड, उसके बारे में बात की गई है। तो पॉइंट नंबर 1 इज इट इज स्टैट्यूटरी रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज नाबस्किल, नेबस्किल बोल सकते हैं आप इसको, डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। नेबस्किल डिजिटल पोर्टल इज एन इनिशिएटिव बाय नबार्ड through which training institution can apply online for financial support from NABARD for providing training to rural youth. So which of the following statements given above is and are correct? So both of them are correct, A and B. So answer is C, both 1 and 2 are correct. So NABARD is a statutory refinance institution which works in the areas of rural financing and agriculture development, और उसने अभी एक डिजिटल पोर्टल चालू किया है नेबस्किल, ताकि क्या कर सके हम कि भाई जहां भी जिन भी कंपनीज को जो वहां पे हैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर दिक्कत आ रही है सो दे कैन आस्क फॉर ए फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम नबार्ड, और रूरल यूथ को आप ट्रेनिंग देना कंटिन्यू
कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, दीज ऑल 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस आपकी तैयारी में मदद करेंगे। एंड यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, बिकॉज आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही क्लासेस और लेकर आता रहूंगा। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी, जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर चैनल, कि हम एमसीक्यूज करेंगे डेली करंट अफेयर्स के। उसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडिया फिजिकल, इंडिया के सारे स्टेट्स को पर्टिकुलरली पकड़ के, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, एक एक स्टेट को हम पढ़ेंगे, 15-15, 20-20 मिनट में हम खत्म करेंगे। उसके बाद फिर एंटायर वर्ल्ड, एक दिन जापान पढ़ेंगे, एक दिन यूएसए पढ़ेंगे, एक दिन रशिया पढ़ेंगे। सो एंटायर ज्योग्राफी मैप्स के माध्यम से बहुत प्यारे तरीके से हम कराने वाले हैं। जस्ट शेयर द वर्ड विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। और वीकली हम एक डिस्कशन भी रखा करेंगे, जो कि आपको यूपीएससी के आंसर राइटिंग या फिर सीडीएस के जब आपका ग्रुप टास्क होते हैं, वहां पे जब आपको खड़ा करके बोलने के लिए एक्सटेम्पोर किया जाता है, तो आपको उसमें मदद करेगा। या फिर सीएपीएफ में जब आपको आपकी आंसर राइटिंग करनी होगी, उसमें मदद करेगा। सो दैट विल कम एज वीकली वंस। इस संडे से वो स्टार्ट होने वाली है, और वीकली 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे, एमसीक्यूज डेली आते रहेंगे। और कंपाइल्ड पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, बट दैट विल बी कंपाइल्ड फॉर द वीक। और फ्राइडे इवनिंग या फिर सैटरडे मॉर्निंग या फिर इवनिंग तक वो आपके पास पहुंच जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग कि मैं जब फ्री हूं। और आपको मिलेगी कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड हम और कैसे अच्छे तरीके से आप लोगों को सर्व कर सकते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, सो दैट यू लर्न बेटर विद मी एंड आई ग्रो विद यू। बोथ गोज हैंड इन हैंड। नमस्कार, जय हिंद, तब तक के लिए अलविदा।